So we are going to start with sociology optional syllabus. Firstly, we'll go thorough with the sociology optional syllabus. We have paper 1 and paper 2 for the sociology optional, and this goes for your UPSC or any state civil services examination. Okay, if you opt for sociology, so the very first thing that you really need to do is to look for the syllabus. And the second thing is, which is often said is PYQs, but I would say rather going, or searching for PYQs, you should rather focus more on the syllabus and what it contains. What does, you will find under like what is like sociology as science? What do you mean by that? Like a bit understanding of the chapters, then you can go with the PYQs. Okay, so let us start. If you see this sociology, the discipline, the very first chapter is about itself sociology, that subject. But when we are going to study this chapter, you'll find a lot of depth in it. Like there is this modernity and social changes in Europe. If you see, it has a total historical background in it, in itself. Okay, like what is it? What was happening in Europe, how does sociology emerge. So, this contains basically a historical background. Then, what is the scope of this subject and comparison with other social sciences? With other social sciences, you're going to find a comparison. Now, what are the other social sciences subjects? You have, I think enough knowledge regarding this, which is psychology, economics, political science, anthropology, okay? And the third is sociology and common sense. Again, you're going to have a comparison here and similarities or comparisons we're going to discuss here. Then if we see like in detail what is going to be there in this sociology, the discipline syllabus, what it is going to cover. Firstly, it is like origins of sociology in Europe. क्या क्या origin कैसे कैसे इसका रहा, ठीक है. जैसे हम सबको पता है एक डार्क एजेस रही, हम सबको नहीं पता है बट आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा. तो डार्क एजेस 5th से 15th सेंचुरी तक की रही हैं. उस टाइम पे कोई इनोवेशन नहीं था, कोई अपलिफ्टमेंट नहीं थी, रिलीजियस डोमिनेंस बहुत था और कोई इन्वेंशन नहीं थी उस टाइम पे, कोई डिस्कवरी नहीं थी. तो एक बहुत वहाँ के जो सोसाइटी थी वो बहुत स्टोइक सोसाइटी थी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल थे. तो आपको यहाँ पे यूरोप का पूरा चेंजेस पूरा लाइक सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. एक थोड़ा सा वही जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, कैसे बेसिकली सोशोलॉजी जो है एमर्ज हुआ एज अ डिसिप्लिन, ठीक है. और हमें भी पता है कि यूरोप में बहुत सारी कंडीशंस रही हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फिनोमिना, ठीक है. एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अर्बनाइजेशन बहुत है, और यहीं से हमने ये कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, ठीक है. और इस तरीके से एज ऑफ एनलाइटमेंट इसके बाद आई थी. तो हम पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है. अभी हम इतना लाइक आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एक बेसिक लेआउट मैं आपको दे रही हूँ कि क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें आप इसमें कवर करोगे, ठीक है. तो फिर अब बाद में आपने यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने कंपैरिजन, यानी कि उसका डिस्टिंक्शन क्या रहेगा सोशोलॉजी का और बाकी सोशल साइंसेस सब्जेक्ट्स के साथ. सोशोलॉजी का क्या डिस्टिंक्शन रहेगा कॉमन सेंस के साथ, ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं सोशोलॉजी एज साइंस, ठीक है. तो जब हम सोशोलॉजी एज साइंस पढ़ रहे हैं, यहाँ पे साइंस लिखा है, साइंटिफिक मेथड लिखा है, क्रिटिक लिखा है, पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक है, मेजर थेरेटिकल स्टैंड्स ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी. थेरेटिकल स्टैंड्स क्या हैं रिसर्च मेथडोलॉजी के? फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी, नॉन पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजीज. Okay, when you're gonna read this chapter 2, here you will find basically, if we see that how you're going to study society in a as a perspective of a science. Like this is going to be a scientific study of a society, of a social system. आप एक scientific study कर रहे हो, ठीक है. और उसमें फिर आप ये पूरा इसमें ही आप इस पूरे एक कहते हैं ना एक बेस को समझोगे, कैसे डार्क एजेस का सिस्टम रहा, कैसे एज ऑफ एनलाइटमेंट आया, कैसे मशीन्स ने टेक ओवर कर लिया, क्योंकि लोगों को रिप्लेस मशीन्स ने किया था, ठीक है, इन एनिमेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी. और उसमें ही फिर आप कैपिटलिस्ट को थोड़ा पढ़ोगे. और साथ ही साथ में इन्होंने पॉजिटिविज्म
और उससे क्रिटिक के बारे में कहा गया है। तो ये अप्रोचेस को भी हम पढ़ेंगे। पॉजिटिविज्म किसने दी है, जैसे पॉजिटिविज्म जो है कॉम्ते ने दी है, तो लेकिन ये हमने डिटेल में पढ़ना है। और इसके जब हम क्रिटिक की बात करते हैं तो वेबर ने दी है, मतलब हम उनकी जो थिंकर्स हैं उनके भी पर्सपेक्टिव को समझ रहे हैं, उन्होंने क्या दिया है, कैसे कहा है। और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट एफ एल से दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ थिंकर्स, लाइक उन्होंने क्या कहा था, उनका क्या मानना है, उनका क्या बिलीफ रहा है, उन्होंने क्या थ्योरी दी है। तो उस रिगार्डिंग अगर आप देखोगे तो थिंकर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इफ यू आर राइटिंग आंसर्स एंड मीन्स you should know about thinkers a lot. Like if you're quoting something, quote of a thinker. ठीक है। उसके बाद मेथडोलॉजीज हम पढ़ेंगे इसमें, जैसे कि लिखा भी है यहाँ भी मेथडोलॉजी है, रिसर्च मेथडोलॉजी है, अलग अलग मेथडोलॉजीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। एंड उसके बाद आ जाता है हमारा रिसर्च मेथड्स एंड एनालिसिस। रिसर्च मेथड एंड एनालिसिस, देखो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड टेक्निक्स आ गई। डेटा कलेक्शन की क्या क्या टेक्निक्स रहती हैं उसको हम पढ़ेंगे। और सैम्पलिंग, वेरिएबल्स, हाइपोथेसिस, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी। ओके, इसमें हमने इस तरीके से पढ़ना है सर्वे वगैरह। उसमें क्या होता है, सर्वे जैसे कि हम करते हैं लोगों का, ठीक है, जैसे एक गांव है, वहाँ पर आपने एक पेपर, एक पैम्पलेट दिया है, उसको फिल करना है, तो आपने सब में बांट दिया और बाद में आप उनके आंसर्स ढूंढ रहे हो, एक सर्वे कर रहे हो कि किसका एक जनरल ओपिनियन ढूंढ रहे हो, वहाँ के लोगों का क्या है ना। या एक केस स्टडी कर रहे हो, केस स्टडी भी इसी तरीके, गाँव को आप स्टडी कर रहे हो, वहाँ की केस स्टडी बना रहे हो। ठीक है। किस तरीके से, देखो एक सिंपल रिसर्च फ्रेमवर्क को भी डिज़ाइन करना है। आप यहाँ पर स्ट्रेंथ उसकी पढ़ोगे, वीकनेसेस को पढ़ोगे। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव क्या हो गया, क्वांटिटेटिव में सेंसस, सर्वे वगैरह, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वगैरह आ जाता है। क्वालिटेटिव में कोई इंटरव्यू हो गया, कोई ग्रुप डिस्कशन हो गई, कोई पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक है। ये बहुत एक क्रिस्प फॉर्मेट में हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद आते हैं सोशोलॉजिकल थिंकर्स, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल सोशोलॉजी syllabus, that are sociological thinkers, and we have 6 sociological thinkers which are in itself like a huge, carries a huge weightage in respect to marks. तो इसमें आप सबको पढ़ोगे। ठीक है। जैसे भी ये मार्क्स है, पहला दिया हुआ है उसकी हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म को, मोड ऑफ प्रोडक्शन, एलिनेशन, क्लास स्ट्रगल, ये इसकी थेरीज दी हुई हैं सारी। किसने क्या दिया हुआ है यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, और इसी को हम आगे डिटेल में डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है। एमाइल डर्कहाइम ने क्या दिया है, सोसाइटी का, सोशल फैक्ट का, रिलीजन, सोसाइटी, डिवीजन ऑफ लेबर। मैक्स वेबर ने क्या दिया है, सोशल एक्शन, आइडल टाइप्स, अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। और किसने क्या बुक्स लिखी हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकी बुक्स, इनके इम्पॉर्टेंट कोट्स, ये सब चीज़ें भी पढ़नी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनकी डेट्स भी याद करनी है, किसमें कब बुक, कौन सी क्या बुक लिखी है, किस डेट को पब्लिश की है। ठीक है। और फिर क्वेश्चन किस तरीके से मेंस में आएगा कि आपने इस तरीके से इनके ही आइडियाज़ को, क्वेश्चन में आपको बता रही हूँ कि जैसे इनका कोई आइडिया है और वो पूछा कि ये कैसे अप्लाई होता है आज के मॉडर्न एरा में, मॉडर्न वर्ल्ड में या कंटेम्प्रेरी इंडिया में, किस तरीके से इनका आइडिया अप्लाई होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद आ जाता है स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी। इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स अलग अलग दिए हुए हैं, इक्वालिटी, हायरार्की, इनइक्वालिटी। ठीक है। और इसमें हम थेरीज पढ़ेंगे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की। ठीक है। स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट थेरी, मार्क्सिस्ट फंक्शनल थेरी, वेबेरियन थेरी। स्टडी और किस चीज़ को हमने करना है, डायमेंशंस, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ क्लास, स्टेटस ग्रुप, जेंडर, एथनिसिटी एंड रेस, सोशल मोबिलिटी, ओपन एंड क्लोज सिस्टम, टाइप्स ऑफ मोबिलिटी, सोर्सेज एंड कॉजेज ऑफ मोबिलिटी। तो ये खुद में ही बहुत देखा जाए तो एक्सप्लेन्ड है। ठीक है। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होगा, एक तरीके से कि कैसे सोसाइटी जो है स्ट्रैटिफाइड है। ओके। और इसमें अभी
आई डोंट नो आपको समझ आएगी कि नहीं। जैसे भी कार्ल मार्क्स को आप देख लो, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने भी थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन दी है और मैक्स वेबर ने भी थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन दी है। अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो उसने ना सोसाइटी को डिवाइड किया है। देखो, स्ट्रैटिफाइड मीन्स हाउ द सोसाइटी इज डिवाइडेड इन सिंपल टर्म्स। और इसने कैसे बताई है? इसने बताई है कि एक हायर क्लास है। तो जो कार्ल मार्क्स है ना, एक क्लास को लेकर बहुत बात करता है। इसकी जो मोस्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन है या इसकी जितनी भी बातें आप पढ़ोगे वो क्लास को लेकर ही हैं, उसी के ऊपर इसने थेरीज दी हैं। अभी जैसे एक हायर क्लास का इसने कॉन्सेप्ट दिया है और लोअर क्लास का, यानी कि इसने सोसाइटी को इस बेसिस पे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और इनका नाम भी दिया है कि हायर क्लासेस आर नोन एज बुर्जुआजी, वी pronounce it as bourgeois, and lower class is known as proletariats. Okay. यहाँ पे आपने किसको पढ़ा, किस तरीके से सोसाइटी डिवाइड हो रही है। अब आ जाओ मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने अपना एक तरीका बताया है जिससे वो बताना चाहता है कि सोसाइटी इन बेसिस पे डिवाइडेड है या इन बेसिस पे स्टैंड करती है। जैसे कि क्लास, इसने बताया है क्लास, पावर एंड स्टेटस, ठीक है। क्लास इज बेसिकली द इकोनॉमिक स्टेटस एंड स्टेटस इज पोजिशन, पावर इज अथॉरिटी दैट यू हैव। और इसी की बेसिस पर आगे फर्दर टाइप्स दी हैं, ठीक है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स नॉट गो मच इन डेप्थ, ताकि अभी समझाऊंगी ना सारे थोड़ा थोड़ा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ओके, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ में आप पढ़ोगे वर्क के बारे में, व्हाट इज़ वर्क, ठीक है, प्रिमिटिव सोसाइटी में क्या सीन रहा था, एंशंट में फ्यूडल सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, उन सब सोसाइटीज़ को भी पढ़ोगे साथ में, और वहाँ के वर्क कल्चर को भी एक तरीके से पढ़ोगे कि वहाँ काम कैसे होता था, ठीक है। फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल है, हमने आई थिंक 9th-10th की बुक्स में भी ये दिया हुआ है, फॉर्मल और इनफॉर्मल का बहुत एक्सप्लेन्ड वर्जन में दिया है। आई डोंट रिमेंबर इन विच क्लास इट इज़ आई थिंक इन 9th-10th और 11th और 12th, वन ऑफ द बुक्स। ओके, नाउ फॉर्मल और इनफॉर्मल में हमें बहुत अच्छे से पता है चीज़ों के बारे में। ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, ठीक है, जहाँ पे आपकी जो सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी है वो बहुत आपको उसी के लिए हम इस जॉब को प्रेफर करते हैं, बिकॉज वी हैव जॉब सिक्योरिटी हेयर। यहाँ पे एक परफेक्ट जॉब सिक्योरिटी आपको देखने को मिलती है। आपकी फिक्स्ड वेजेस होती हैं, फिक्स्ड टेन्योर ऑफ वर्क होता है, ठीक है। आप टैक्स पेयर्स के तौर पर यहाँ जाने चाहते हो। बट यहाँ पे जब हम इनफॉर्मल की बात करते हैं, यहाँ आपका अनऑर्गेनाइज्ड वर्क तो है ही है, तभी इसका नाम इनफॉर्मल है। साथ में ना कोई हेल्थ फैसिलिटी है, ना कोई वेजेस की सिक्योरिटी है, ना कोई जॉब सिक्योरिटी है। नो जॉब सिक्योरिटी, नो वेजेस प्रॉपरली, नो वर्क्स गिवन, ठीक है। एक तरीके से आप कहोगे तो बॉन्डेड लेबर या कैजुअल लेबर की तरह इसे दर्शाया जाता है, ठीक है। लेट्स नॉट अगेन गो मच इन डेप्थ कि हमें एक ही को यहीं पर भी सारे चैप्टर समझा देने हैं, थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। ओके, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है। सोशोलॉजिकल थेरीज ऑफ पावर, पावर एलीट, ब्यूरोक्रेसी, प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज, नेशन स्टेट हो गया, सिटीजनशिप हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, सिविल सोसाइटी हो गया, आइडियोलॉजी हो गया, प्रोटेस्ट, एजिटेशन, सोशल मूवमेंट्स, कलेक्टिव एक्शन, रेवोल्यूशन, ये सब पढ़ना है, डेमोक्रेसी वगैरह, ठीक है। ये सब आप चीज़ें यहाँ पर पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, इन सब चीज़ों को पढ़ोगे। कुछ थ्योरीज भी हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो पावर एलीट है ना, इस पे एलीट थ्योरी भी है, इस चीज़ को आपने पढ़ना है। यहाँ पर आप देखो, आप एक टर्म देख रहे हो, अगर आप देखोगे ना, आप एक टर्म दे रहे हो, ब्यूरोक्रेसी, पावर एलीट, प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन आप देखोगे कोई कहाँ से कनेक्ट कर रही है किसी चैप्टर के साथ। पावर एलीट जिसने हमें बताया कि इसमें ये थेरीज दी हुई हैं, ठीक है, सोशोलॉजिकल थेरीज पावर को लेकर,
पावर एलीट की थियरी, ब्यूरोक्रेसी भी आप पढ़ोगे एक थिंकर की। जब आप एक थिंकर को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा उसने ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी अच्छे से इन डिटेल बताया है। तो C.W. मिल्स ने किस तरीके से एलीट को एक्सप्लेन किया है, ठीक है, वेबर ने किस तरीके से अथॉरिटी को एक्सप्लेन किया। तो आप इसमें देखोगे ये टर्म्स छोटी दिख रही हैं, आप एक पेज जितना याद कर लोगे दैट्स नॉट इनफ, यू हैव टू गो इन डेप्थ एंड हाउ इट इज़ कनेक्टेड टू अदर चैप्टर्स, टू थिंकर्स, ओके। उसके बाद आ जाता है हमारा रिलीजन एंड सोसाइटी। रिलीजन एंड सोसाइटी में सोशोलॉजिकल थेरीज क्या है रिलीजन की, यानी कि ऑरिजिन कैसे हुआ है, क्या क्या थेरीज रही हैं, कैसे रिलीजन प्रैक्टिसेस रही जाती थी, सेक्ट कल्चर क्या रहता है, सेकुलरिज्म को आप पढ़ोगे, प्लूरलिज्म को पढ़ोगे, एनिमिज्म को पढ़ोगे, ठीक है, और सेकुलराइजेशन वर्सेस रिवाइवलिज्म को पढ़ोगे। हर जैसे अभी ये रिवाइवलिज्म है, ठीक है, और ये सेकुलराइजेशन है, क्वेश्चन आ गया मीन्स में डिफरेंस बताओ क्या, या फिर इनका आपस में रिलेशन है, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर देखो यहाँ पे आपने पढ़ा, आपने इन टर्म्स को पढ़ा, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि एवरी टर्म हियर हैज़ एन इन डेप्थ इंफॉर्मेशन and a relation to thinker or a relation to others chapters also. So for example डरकाइम की बहुत important statements रह चुकी हैं रिलीजन को लेकर और सोशल क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। वेबर ने भी रिलीजन के ऊपर बात की है, रैशनलाइजेशन की बात की है, ठीक है। तो आप देखोगे कि किस तरीके से ये थिंकर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और आप क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, दैट इज़ कि इनके बारे में बताओ, ये आज की डेट में किस तरीके से कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में किस तरीके से आप इस चीज़ को डिस्कस करोगे रिलीजियस रिवाइवलिज्म को। तो आपने कंटेम्प्रेरी वे में बताना है कि आज के दौर में इसका क्या रोल है, या आज के दौर में इसका क्या फंक्शन चल रहा है, या इसको किस तरीके से हम आज के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सिस्टम्स ऑफ किनशिप में फैमिली, हाउस होल्ड, मैरिज, टाइप्स ऑफ फैमिली, फॉर्म्स ऑफ फैमिली, lineage, descent, patriarchy and sexual division of labor, contemporary trends, इन सबको पढ़ोगे। अगेन यहाँ पर ये बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फैमिली को आप पढ़ रहे हो, आप हाउस होल्ड को पढ़ रहे हो, और उस फैमिली में डिफरेंट टाइप्स के आप देखोगे कि न्यूक्लियर फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, ठीक है, वो आपने फर्दर पढ़ना है। जेंडर्ड लेबर क्या होता है, और कैसे आप इस चीज़ को भी पढ़ोगे कि कैसे जो डेमोक्रेसी है वो इम्पैक्ट करती है फैमिली को, और इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब आप बोलोगे कि डेमोक्रेसी का क्या कनेक्शन है फैमिली से, बट दैट्स हाउ यू विल गेट कन्फ्यूज इन योर एग्जाम्स, एंड बिफोर हैंड यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ वाइजली सेड दैट गो थरो विद योर PYQs, बिकॉज वहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो आपको पैटर्न पता चल जाता है, और आपको इंडियन फैमिली की ट्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए, वहाँ के लॉज के बारे में। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको एक अच्छे वे में और एक यूनिक वे में लिख पाए, ठीक है। उसके बाद लास्ट चैप्टर जो है हमारा वो है सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी में, कि इंडिया में कैसा है, मॉडर्न सोसाइटी में सोशल चेंज कैसा है, डिपेंडेंसी थ्योरी क्या रहेगी, एजुकेशन क्या रहेगा, साइंस एंड टेक का चेंज हो सकता है। तो हम सोशल चेंज की बात कर रहे हैं, मॉडर्न सोसाइटी में सोशल चेंज किस तरीके से रहता है। डेवलपमेंट थ्योरी हो गया, ठीक है, डिपेंडेंसी थ्योरी हो गया, एजुकेशन टेक, एजेंट्स ऑफ, क्योंकि हम सोशल चेंज की बात करें तो एजेंट्स क्या रहेंगे, एजुकेशन, साइंस एंड टेक, ठीक है। हमने यहाँ पर हम कोई एक केस स्टडी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन रेवोल्यूशन को लेते हैं, तो ये केस स्टडी है, ठीक है, या फिर IT इंडस्ट्री को लेते हैं, और हम एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज को एक्सप्लेन कर देते हैं इन केस स्टडीज़ के थ्रू। दैट इज़ हाउ योर आंसर विल लुक यूनिक एंड इट विल बी फिल्ड विद डिफरेंट फैक्ट्स, नॉलेज, आप इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से डाल रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंडियन सोसाइटी, स्ट्रक्चर एंड चेंज। लेट मी फिक्स दिस। So this is our paper 2. We are done with paper 1.
अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस ऑफ पेपर 1 हैज़ बीन डन। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं इंडियन सोसाइटी को, और पर्सपेक्टिव क्या रहता है ऑन द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी। एंडोलॉजी एक थ्योरी दी हुई है जी.एस. घुरे ने। ठीक है, जी.एस. घुरे का क्या मानना था कि विलेज इज़ नॉट अ सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटी। ठीक है, और जी.एस. घुरे को हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं। इन्होंने ट्राइब्स के बारे में बात की है, कास्ट को लेकर बात की है, और विलेज इज़ नॉट अ सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटी कहा है कि विलेज खुद में ही काफ़ी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एम.एन. श्रीनिवास है। यहाँ पर तो सिर्फ लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, बट इन्होंने वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया है, संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया है, और डीसंस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया है। यहाँ पर ये एक फील्ड स्टडी थिंक करवाने जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे कि सिर्फ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पे बात नहीं की है इन्होंने, काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जुड़े हुए हैं एम.एन. श्रीनिवास से। ब्रह्मनाइजेशन इवन इज एसोसिएटेड विद एम.एन. श्रीनिवास, ये सब आप यहाँ पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद मार्क्सिस्ट सोशोलॉजी को आप ए.आर. देसाई ने क्या कहा है। मार्क्सिस्ट सोशोलॉजी तो वही है कि जो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी को जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, तो ए.आर. देसाई उसी मार्क्सिस्ट सोशोलॉजी पर बात कर रहा है। तो अगर हम तब की सोसाइटी को पढ़ते हैं और एक तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से मार्क्स ने समझा, तो उन्होंने बहुत ही एंशिएंट टाइम से लेकर आज के मॉडर्न टाइम तक को कवर किया है। फॉर एग्जांपल, तब उन्होंने प्रिमिटिव सोसाइटी को एक्सप्लेन किया, फिर एंशिएंट सोसाइटी को एक्सप्लेन किया, फिर फ्यूडल सोसाइटी को एक्सप्लेन किया, एंड देन कैपिटलिस्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये आगे आगे कैसे बैकवर्ड से फॉरवर्ड ये कैसे मूव की है सोसाइटी, हाउ इट हैज़ इवॉल्व ओवर टाइम। फिर है इम्पैक्ट क्या रहा कॉलोनियल रूल का। इंडियन सोसाइटी में कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन जैसे कि रही है, हम सबको पता है, तो आप एक इकोनॉमिक एंगल से समझा सकते हैं। कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके से हुई है ये समझा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल, तो इम्पैक्ट क्या पड़ा है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, कैसे मॉडर्नाइज हो गया इंडियन ट्रेडिशन, और सोशल बैकग्राउंड क्या रहा है इंडियन नेशनलिज्म का, प्रोटेस्ट वगैरह, जितने भी मूवमेंट्स वगैरह चली, तो एक सोशल बैकग्राउंड है, हम सबको पता है, और हम हिस्ट्री में बहुत बेहतरीन तरीके से जान रहे हैं कि क्या क्या मूवमेंट्स चली हैं, क्या क्या प्रोटेस्ट चले हैं, कितना कुछ हुआ है, तब जाके हमें आज़ादी मिली है। तो यहाँ पर वो पूरा सोशल बैकग्राउंड इंडियन नेशनलिज्म का बताना है। उसके बाद प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, सोशल रिफॉर्म्स क्या क्या रहे, और हम सबको पता है सोशल रिफॉर्म्स भी कितने ज़्यादा रहे हैं। सती प्रथा, विडो री मैरिज, नो व्हाई दिस पेंसिल इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। तो बहुत सारे ये तो मैं अब जस्ट आपको ऐसे बता रही हूँ, जैसे चाइल्ड मैरिज के ऊपर बैन लगा दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल रिफॉर्म के तौर पर आई हैं। एजुकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स कि ये एक रिफॉर्म लाया एजुकेशन, वोटिंग। ठीक है, सफरेज एक्ट, फेमिनिज्म की जो वेव्स थी वहाँ से कितना ज़्यादा इवॉल्व हुई है सोसाइटी। उसके बाद आ जाते हैं सोशल स्ट्रक्चर पर, जिसमें आपको काफ़ी चैप्टर्स देखने को मिलते हैं सोशल स्ट्रक्चर में। रूरल और एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, और द आइडिया ऑफ इंडियन विलेज एंड विलेज स्टडीज़। एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, एवोल्यूशन ऑफ लैंड टेन्योर सिस्टम, लैंड रिफॉर्म्स, इसमें आप सब कुछ पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद
अगर हम इसको भी इतने से पार्ट को डिटेल में देखेंगे ना, वेट अ सेकेंड, ठीक है। लैंड टेन्योर सिस्टम कहाँ पे है? लैंड टेन्योर सिस्टम, ये एवोल्यूशन कैसे हुआ। हम सबको लैंड टेन्योर सिस्टम के अलग अलग चीज़ें टाइप्स तो पता है। ज़मींदारी सिस्टम आ गया, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। प्लीज़ डोंट गो विद दीज स्पेलिंग्स, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं लिख रही हूँ जस्ट ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। और प्री इन 1991 लैंड रिफॉर्म्स हुए थे, ठीक है। 1991 से पहले भी लैंड रिफॉर्म्स हुए थे। इंडिपेंडेंस के बाद भी रिफॉर्म हुए, जैसे कि ज़मींदारी को एबॉलिश करना, टेनेंसी रिफॉर्म्स लाए गए, लैंड होल्डिंग के लिए सीलिंग कराई गई, लैंड होल्डिंग को कंसोलिडेट किया गया, कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इनकलकेट की गई। और जब हम यहाँ पे विलेजेस की भी बात करते हैं ना, एक विलेजेस से क्या क्या एसोसिएट है, वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ की पंचायत क्या है, वहाँ का एग्रीकल्चर क्या है, वहाँ की मैरिज, फैमिली, कास्ट, रिलीजन, हम इन सब चीज़ों को कवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कास्ट सिस्टम, जिसमें बताया हुआ है कि अलग अलग पर्सपेक्टिव क्या रहता है कास्ट सिस्टम का। जी.एस. गुरे का क्या है, लुई दुमांत का क्या है, एंड्रिया बटेल का क्या है, एम एन श्रीनिवास का क्या है। तो इनके अपने अपने पर्सपेक्टिव होंगे कास्ट सिस्टम को लेकर, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। फीचर्स हम कास्ट सिस्टम को पढ़ेंगे। फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम कैसे, जैसे कि एंडोगामी हो गई, एंडोगामी क्लोज ग्रुप से का पार्ट है, एंडोगामी, आस्क्रिप्टिव। ये मैं बस आपको इस तरीके से समझाना चाहती हूँ कि फीचर्स किस तरीके के हो सकते हैं। अक्सर लोग फीचर्स में गलतियाँ कर बैठते हैं कि क्या लिखना है फीचर्स में, तो वो यहाँ आपको समझाना है, ठीक है। अनटचेबिलिटी हमें भी पता है किस तरीके से बैन की गई, आर्टिकल 17 भी है हमारे पास, फंडामेंटल राइट, जहाँ पे अनटचेबिलिटी को ऑफ एनी फॉर्म उसे अबॉलिश किया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 17 हमें भी पता है राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, विच इज़ ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया, ठीक है। और जब हम ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया की बात करते हैं, ये सिर्फ सोशोलॉजी तक ही कन्फाइन नहीं रहता, महदूद नहीं रहता। आप इसमें एक तरीके से पॉलिटी को भी कवर कर रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी को भी कवर कर रहे हैं, और इंडियन सोसाइटी को भी कवर कर रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि आपको पॉलिटी में भी बहुत सारी मूवमेंट्स, बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ने को मिलेगा, इवन इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। अब यहाँ पे ट्राइब्स क्या होते हैं, ठीक है, उनके फीचर्स क्या है, ट्राइबल ग्रुप्स के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किस किस को दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नेशनल प्रॉब्लम्स, जोग्राफिकल स्प्रेड, कॉलोनियल पॉलिसीज एंड ट्राइब्स, इश्यूज ऑफ इंटीग्रेशन एंड ऑटोनॉमी, ठीक है। हमें सेंसस के अकॉर्डिंग, जैसे 2011 का सेंसस हुआ था, वहाँ पे हमें पता चला था कि 10.45 करोड़ जो है वो ट्राइब्स, यानी कि 8.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज़ ट्राइब्स। तो ये चीज़ों के पता होना चाहिए, जैसे शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 कितना इम्पोर्टेंट है। पीसा एक्ट, ये सब किससे जुड़ा हुआ है, पीसा एक्ट 1996, ट्राइबल कम्युनिटीज़ से। ये सब किससे जुड़ा हुआ है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ से। नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं। और एस.सी. दुबे ने 5 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स भी बताई थी। तो इट्स अ वेरी आप कह सकते हो बहुत ही डेप्थ वाला चैप्टर है, बहुत चीज़ों को समझने की ज़रूरत है इस चैप्टर में। उसके बाद आ जाओ सोशल क्लासेस इन इंडिया। यहाँ पर तो 3 ही क्लासेस दी हुई हैं, 3 क्लासेस को मेंशन किया है, उसी को समझना है। और इन छोटी छोटी क्लासेस में आपको लगेगा तो कुछ नहीं है कि देर इज़ नथिंग टू स्टडी, बट यू विल फाइंड देर इज़ एन नंबर ऑफ थिंग्स you need to have a deep conceptual knowledge about, ठीक है। अभी हम एग्रेरियन क्लास की बात करते हैं, तो आपका देखा जाएगा लैंड होल्डिंग कितनी है, लैंड लॉर्ड्स क्या हैं, फार्मर बड़े हैं, छोटे हैं, मीडियम लैंड लॉर्ड्स हैं या नहीं हैं, पीजेंट लैंड लॉर्ड्स हैं कि नहीं हैं, क्या है सिस्टम। आप पूरा
एग्रेरियन एग्रीकल्चर सिस्टम को समझने की कोशिश करते हो। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर, और उसमें आप एक तरीके से देखो तो 3 डिवीज़न है, हायर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है बुर्जुआस कौन है, प्रोलेटरीट्स कौन है, कैपिटलिस्ट कौन है, वर्कर्स कौन है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चीज़ों को कन्फाइन करके रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मिडिल क्लासेस इन इंडिया है, हमें भी पता है इनका कितना स्पर्ट इन ग्रोथ हुआ था मिडिल क्लासेस का, है नो, दे आर नोन इन इंडिया, तो मिडिल क्लासेस ही आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है सिस्टम ऑफ किनशिप इन इंडिया, जैसे लीनिएज एंड डिसेंट इन इंडिया, टाइप्स ऑफ किनशिप सिस्टम, फैमिली, मैरिज, हाउस होल्ड डायमेंशंस, पेट्रियार्की, एंटाइटलमेंट्स एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ोगे, समझोगे। अगेन इट्स रिलेटेड टू द अर्लियर चैप्टर जो हमने मैरिज के रिलेटेड पहले भी थोड़ा सा पढ़ा था, एंड इट इज़ अ वेरी लाइक अंडरस्टैंडेबल चैप्टर, आपको समझ आ जाएगी एंडोगैमी, मैरिज, एक्सोगैमी, सोलोगैमी, ये सब क्या है, पेट्रियार्कल क्या है, मिलीनियल क्या है, मैट्रिलिनियल क्या है, तो ये सब चीज़ों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। उसके बाद आ जाता है रिलीजन एंड सोसाइटी, रिलीजियस कम्युनिटीज़ को हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को हम पढ़ेंगे, जैसे हमें भी पता है कि मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, पारसी, सिख, ज़ोरास्ट्रियंस, दीज आर माइनॉरिटीज़ इन इंडिया। उसके बाद आ जाता है विजन ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, ठीक है, विजन क्या है सोशल चेंज इन इंडिया का। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सोशल चेंज, एजुकेशन एंड सोशल चेंज, ये 3 दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए। देखो, हम विजन ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, हम एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर बात करते हैं कि दैट्स हाउ द सोसाइटी हैज़ इवॉल्व ओवर टाइम। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन आया, लॉ आया, लॉ मेकिंग प्रॉपर हुई, सोशल चेंज आया, और उससे हमें सोशल चेंज देखने को मिला, यानी कि जो सोसाइटी जहाँ पे पढ़ना लिखने को भी इतनी अहमियत नहीं दी थी, और एक टाइम था कि ब्रिटिशर्स डोंट वांट इंडियन पीपल टू लर्न इंग्लिश, एंड लेटर जब उन्होंने इंग्लिश सिखाई भी तो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, लाइक देयर वाज देयर मोटिव हिडन बिहाइंड कि ये हमारे काम आएंगे, इनको इंग्लिश आनी चाहिए, बिकॉज वी नॉट एबल टू हैव कॉन्वर्सेशन विद देम लाइक फेस टू फेस। तो एजुकेशन का बहुत रोल रहा है सोशल चेंज में। इसी तरीके से सोशलिस्ट इकॉनमी होती है, मिक्स्ड इकॉनमी होती है, क्रोनी कैपिटलिज्म होती है, और वो जो फ्यू प्लेयर्स होते हैं ना, वही कहीं ना कहीं रूल कर रहे होते हैं पूरी इकॉनमी को, पूरी फैमिली को, पूरी सोसाइटी को, हर किसी को वो कंट्रोल करते हैं, वो दिखाते हैं, वो बताते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा चैप्टर रूरल एंड एग्रीरियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। इट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, रूरल एंड एग्रीरियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, वेलफेयर स्कीम्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट यू कैन फाइंड हियर, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या था, कैसे निकल कर आया, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, 1967 में आया था, पहला फेज था। मोड ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, बॉन्डेड लेबर, प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल लेबर माइग्रेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर पढ़ने को, समझने को, ठीक है। उसके बाद हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम मॉडर्न इंडस्ट्री को पढ़ेंगे, किस तरीके से जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं उनका किस तरीके से हमें ग्रोथ देखने को मिला, वर्किंग क्लास के बारे में हमें पता चलेगा। हम सेंसस को देखेंगे, हम अर्बन एरिया की डेफिनेशन को सेंसस में देखेंगे, और ये जो फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं, चाइल्ड लेबर नॉर्म्स गिवन बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज़ पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, जो बहुत इंटरेस्टिंग हम सबको लगता है कि हम पॉलिटिक्स को जानें कि किस तरीके से वो अपना काम कर रही हैं। हर दिन न्यूज़ पे अगर लगा होता है तो पॉलिटिक्स को लोग देखते हैं, और उससे एक तरीके से अवेयरनेस रहती है कि हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है। नेक्स्ट है सोशल मूवमेंट इन इंडिया, पीजेंट वर्सेस फार्मर मूवमेंट्स काफ़ी हुई हैं देखा जाए तो सोशल मूवमेंट्स तो हैं, और हमने भी देखी हैं, अभी प्रेजेंट टाइम तक देख रहे हैं
there are social movements in India, and there is like very much requirement of this thing to be changed, that सोशल मूवमेंट्स जो हो रही हैं वो एक चेंज लेकर आए, एक्चुअल में चेंज लेकर आए. इट शुड नॉट बी लाइक जस्ट स्पीकिंग ऑन इंटरनेट और नॉट डूइंग एनीथिंग. उसके बाद वुमेन मूवमेंट्स पे आप देख सकते हो. यहाँ ये है वुमेन मूवमेंट. इसको नहीं पता चल रहा है मैं कहाँ से बोल रही हूँ, ठीक है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वुमेन मूवमेंट, बैकवर्ड क्लासेस एंड ऑल डायनेमिक्स. लेकिन वुमेन का मैं इसलिए इम्पोर्टेंट कह रही हूँ क्योंकि वुमेन पे ना बहुत क्वेश्चन आते हैं. आप ऐसे को लेकर कहो, आप GS3 GS की बात करो, कोई भी क्वेश्चन, तो वुमेन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. लेकिन इवन इफ देयर इज एन एसे और सोशोलॉजी का इम्पोर्टेंट सिलेबस, यू आर एबल टू राइट वेरी ब्यूटिफुली. ओके, देन वी हैव पॉपुलेशन डायनामिक्स. बर्थ रेट क्या है, सेक्स रेट क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, IMR क्या है, MMR क्या है, TFR क्या है, DFR क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000. पढ़ो समझो इसको अच्छे से. एंड द लास्ट चैप्टर वी हैव आई गेस इज चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. इज इट सो? दिस इज द लास्ट चैप्टर. या इट इज़ द लास्ट चैप्टर. सो चैलेंजेस काफ़ी रहेंगे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है. और ये जितने भी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हो रहा है, ये एक तरीके से आप देखो, वुमेन के खिलाफ तो सदियों से लड़ाई जंग हो रही है कि उनको उनके हक नहीं मिले, उनको उनके हुकूक नहीं मिले. सो वुमेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. और किस तरीके से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, दैट इज़ द होल स्टोरी और होल केस अबाउट. केस कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, रिलीजियस रिवाइवलिज्म हो गया, इलिटरेसी हो गया, इकोनॉमी वर्सेस एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है. या आप पढ़ सकते हो कम्युनलिज्म, रिलीजियस रिवाइवलिज्म, इलिटरेसी एंड डिस्पैरिटीज़ इन एजुकेशन. ये सब चीज़ों को आपने पढ़ना है, अच्छे से एक्सप्लेन करो, समझो क्या लिखा हुआ है. पेपर 1 पेपर 2 दैट्स इट, कंप्लीट हो गया है. सो